Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your RBI Grade B and NABARD Grade A for the year 2024. And in this session guys, we'll be covering two very important topics for your exam that are namely prepositions and complex prepositions, and this is lecture 4 of this series. Before this lecture we have covered parts of speech, subject verb agreement, nouns, pronouns, tenses and advanced verbs in the previous sessions. So if you have not watched those sessions, go watch those sessions first. They'll be very helpful for your preparation. So guys, let's start with the session, but before we go any further guys, don't forget to like the session and don't forget to subscribe to our channel if you're here for the first time. And guys, first of all, I would like to inform you about the crash course and the quick revision batch that we have launched for you. So guys, let me show you how to enroll in them and how to see what are the deliverables in those courses. So let me just show it to you. Guys, on your browser, if you just type edutap.co.in, right? So if you just type edutap.co.in, you will land on our homepage, and this is our landing page. So guys, on our landing page, everything about our courses, everything about our deliverables have been properly presented to you, and it will be, it will give you a lot of insight into your preparation, into your journey ahead. So let me just try it once again, guys. I think there is something wrong with the internet connection. I don't know what the issue is. So alright guys, so I'll show it to you at the end of the session, don't worry. So let's start with the session guys, and in this session we will be covering 50 very important questions for your exam. So let us begin with the session guys. So one by one, first of all, what you can do is you can pause the video, you can try your questions on every slide first, and then you can listen to my explanation. You will have you'll get the perspective that what your answer is and what the right answer could be or should be here, right? So आप वीडियो भी पॉज करके एक बार अपनी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन आप सुन सकते हो, एंड दिस विल सर्व यू द राइट पर्पस ऑफ द सेशन. तो शुरू करते हैं गाइस. पहला है अपने पास, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस. नाउ गाइस, द एरर इन दिस सेंटेंस वाज बिसाइड्स. नाउ गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स? नाउ गाइस, दीज आर टू वेरी डिफरेंट वर्ड्स. Beside is a preposition, on the other hand besides is a conjunction. Beside होता है guys बगल में, next to. जैसे I was sitting beside my brother, तो मतलब उसके बगल में बैठा था, या my car is parked beside yours. ठीक है, beside होता है बगल में होना, साइड में होना, और जबकि besides का मतलब होता है in addition to, मतलब इसके साथ साथ. जैसे मैं बोलता हूँ besides being a teacher, he is also he is also a coach, या जो मतलब कुछ भी बोल लो यार. Besides being an accountant, he is also he's also an employee in my company, right? तो besides का मतलब होता है in addition to. तो guys, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं कि हम एक दोनों के साइड में चल रहे थे, तो we walked beside each other आएगा, not besides each other. तो beside और besides पे एग्जाम में बहुत बार गलती बनती है guys, तो इन वर्ड्स को ध्यान से समझ के जाना एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन guys, his relation to her wife is good. his relation to her wife नहीं, his relation with her wife. guys याद रखना, मैं आपको इस मतलब ना ये preposition बताता चलता हूँ. रिलेटेड टू होता है, जैसे ही इज रिलेटेड टू मी, शी इज रिलेटेड टू यू, ठीक है. लेकिन रिलेशन या रिलेशनशिप के साथ हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, ही हैज अ रिलेशन विद हर या ही हैज अ रिलेशनशिप विद हर. तो गाइस याद रखना, रिलेटेड टू, लेकिन रिलेशन एंड रिलेशनशिप इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, विद. तो रिलेटेड टू एंड रिलेशनशिप विद, ये आपको ध्यान रखना है. ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं. एक रिलेशनशिप बिटवीन भी आ जाता है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन यू, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन यू. तो बिटवीन हम दोनों के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वैसे जब किसी के साथ बोलना होता है तो हम रिलेशन विद और रिलेटेड टू बोलते हैं. तो हिज रिलेशन
टू हर वाइफ नहीं, विद हर वाइफ इज गुड। नेक्स्ट, द टीचर हैज नो कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स। गाइस याद रखना, कंट्रोल के साथ हम अपॉन नहीं, कंट्रोल ओवर यूज किया जाता है। कंट्रोल किसी के ऊपर होता है, तो द टीचर हैज नो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स। अपॉन होता है जब किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर कोई चीज़ होती है, या जैसे मैं कहता हूँ अपॉन हम कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे कंधों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तब हम बोलते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर या अपॉन माई शोल्डर्स। ठीक है, तो ऐसे हम अपॉन यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वहाँ पे ओवर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट गाइज, वी ट्रैवल्ड विद स्टीमर टू रीच देयर। गाइज याद रखना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने के लिए सिर्फ क्या यूज़ किया जाता है, बाय। आई ट्रैवल्ड बाय कार, आई ट्रैवल्ड बाय प्लेन, वी ट्रैवल्ड बाय एयर, वी ट्रैवल्ड बाय रोड। सुना है, आई एम गोइंग बाय एयर, तो बाय एयर का मतलब क्या होता है, प्लेन से जा रहा हूँ। बाय ट्रेन, बाय कार, बाय कैब। तो कभी भी आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना होता है उसमें आप बाय यूज़ करते हो। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। His statement is very much similar about yours. His statement is very much similar about yours या similar to yours. गाइस याद रखना, similar to होता है और similarity between होता है। ठीक है, there is a lot of similarity between you two, तो similarity between और similar to। ठीक है, ये यूजेज के हिसाब से बता रहा हूँ जो आप हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो ही मतलब ही दिस इज सिमिलर टू दैट, सिमिलर टू यू, सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम। तो सिमिलर टू लेकिन सिमिलैरिटी बिटवीन, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू योर्स। नेक्स्ट, द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी। गाइस देखो, डील में भी दो चीज़ें होती हैं, एक डील इन समथिंग होता है, ठीक है, डील इन समथिंग, एंड एक होता है डील विद समवन। डील इन समथिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बिजनेस में या किसी उसमें डील करते हो, जैसे ही डील्स इन प्रॉपर्टी, ठीक है, ही डील्स इन मेडिसिन, तो ही डील्स इन ग्रेन मतलब वो अनाज बेचता है, तो ही डील्स इन ग्रेन बट ही डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी। तो यहाँ पे गलती क्या थी, द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन नहीं, द शॉपकीपर डील्स इन ग्रेन, कि वो अनाज बेचता है, दाने बेचता है, बट उसने मेरे साथ ऑनेस्टली डील नहीं किया। तो द शॉपकीपर डील्स इन ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही अपील टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। अब मे भी शायद इसमें आपको गलती नहीं दिखी होगी, बट गाइज याद रखना, कोर्ट और जज के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, बिफोर। ही अपील्ड बिफोर द जज या ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो यू हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट या यू हैव टू अपीयर बिफोर द जज। तो जज और कोर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिफोर, क्योंकि कोर्ट में जज के या कोर्ट के सामने पेश हुआ जाता है, तो उसके लिए फिक्स प्रपोजिशन इंग्लिश में है, वो है बिफोर। ठीक है, तो ही अपील्ड बिफोर द जज या ही वाज प्रेजेंटेड बिफोर द जज। Next question guys, I complained against the magistrate against my neighbor about his misconduct. Guys, जिसको आप शिकायत लगाते हो ना, वो होता है कंप्लेंट टू। आई विल कंप्लेन टू द हेड मास्टर, कंप्लेंट टू होता है, लेकिन जिसके खिलाफ आप शिकायत लगाते हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, कंप्लेन अगेंस्ट। कि मैंने तेरी शिकायत लगाई है, आई हैव कंप्लेंट अगेंस्ट यू, लेकिन मैंने प्रिंसिपल को शिकायत लगाई है, आई हैव कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल या आई हैव कंप्लेंट टू द पुलिस। तो आई कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट नहीं, आई कंप्लेंट अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट नहीं, आई कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट माई नेबर अबाउट हिज मिसकॉन्डक्ट। तो कंप्लेंट टू समवन एंड कंप्लेंट अगेंस्ट समवन, ये याद रखना है डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड फॉर आवर एक्शंस। अब गाइस पहले पॉज करके आप ये ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना पहले, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन देखना, ताकि आपको खुद की अपनी एबिलिटी पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड नहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस। रिस्पॉन्सिबल टू होता है, ठीक है, you are responsible to your work, अपने you are responsible to your job। ठीक है, next, the doctor referred the patient for the hospital without examining him। guys refer के साथ याद रखना हमेशा क्या यूज होता है, to। तो the doctor referred the patient for the hospital नहीं, the doctor referred the patient to the hospital विदाउट एग्जामिनिंग हिम। आई रेफर टू, ठीक है, तो रेफर टू हमने बहुत बार देखा होगा लाइफ में, रेफर टू दिस, रेफर टू दिस, ठीक है, या विद रेफरेंस टू समथिंग, डब्ल्यू बोलते हैं विद रेफरेंस टू, तो WRT भी बोल देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू या विद रेफरेंस टू। ठीक है, दोनों में टू यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, माई कजन हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज। गाइज मैरिड विद नहीं, मैरिड टू होता है। ठीक है, माई कजन हैज बीन मैरिड टू द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज। के जब जिससे शादी होती है ना, तो उसके साथ नहीं, उससे शादी हुई है, उसके साथ शादी नहीं हुई है, तो मैरिड विद हम बोल देते हैं, जैसे ही शी इज मैरिड विद अ रिच मैन या शी इज मैरिड टू अ रिच मैन, शी इज मैरिड टू अ रिच मैन।
नेक्स्ट, ही वाज शॉक्ड टू हियर दैट हर मदर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। गाइस देखो, डाई में तीन चीजें होती हैं। एक होता है डाइड ऑफ अ डिजीज, ठीक है, कि वो बीमारी से मर गया, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ डेंगी, ठीक है। दूसरा होता है डाइड फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, जब कोई मतलब बूढ़ा होके या नेचुरल कॉजेज से, बिना किसी उसके ना, नेचुरल कॉजेज में बोलते हैं, तो ही डाइड फ्रॉम नेचुरल कॉजेज। और तीसरा होता है ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है, कि अगर किसी दुर्घटना में किसी का निधन हो जाता है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो ही वाज शॉक्ड टू हियर दैट हर मदर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, नहीं इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो दैट इज द राइट preposition टू बी यूज्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मिस्टर ठाकुर इज ब्लाइंड विद वन आई। गाइज अब देखो, अब कोई अगर एक आंख से अंधा होता है या दोनों आंखों से अंधा होता है तो उसके लिए क्या बोला जाता है, ब्लाइंड विद वन आई या ब्लाइंड ऑफ वन आई या ब्लाइंड बाय वन आई या ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर नहीं पता तो, बट ये पिक्यूलियर सी चीज होती है गाइस, ब्लाइंड ना विद होता, ना बाय होता, ना फ्रॉम होता, ठीक है, ब्लाइंड इन वन आई होता है, ठीक है। मिस्टर ठाकुर इज ब्लाइंड इन वन आई। इन क्यों बोलते हैं, बिकॉज आंख में अंधापन होता है, तो आंख के अंदर अंधापन होने के लिए हम क्या बोलते हैं हमेशा, ही इज ब्लाइंड इन वन आई या ही इज ब्लाइंड इन बोथ आईज। इसी तरह से लेम ऑफ होता है, लंगड़ा होना, ही इज लेम ऑफ वन लेग, कि उसके एक पैर में लंगड़ापन है। तो लेम ऑफ और ब्लाइंड इन, ये कुछ एक चीजें हैं जो याद रखते रहना गाइस, ये कभी लाइफ में काम आ जाती है। ऑन अ हॉलीडे आई प्रेफर राइटिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। गाइस याद रखना, ये मैंने आपको वैसे एडजेक्टिव में भी कई बार बताया है अपने लेक्चर्स में। प्रेफर के साथ कभी भी दैन यूज नहीं करते। प्रेफर के साथ क्या यूज होता है गाइस, या तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे, टू, ऑन अ हॉलीडे आई प्रेफर राइटिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स, या फिर अगर आप करना भी था तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे रादर दैन हो सकता था, लेकिन अकेला दैन यूज नहीं हो सकता, बिकॉज दैन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये जो THAN वाला दैन होता है ना, ये अकेला जब यूज होता है तो ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जैसे शी इज टॉलर देन यू, तो वहां पे यूज करते हैं, लेकिन प्रेफर के साथ दैन नहीं, प्रेफर के साथ टू या रादर दैन यूज होता है। तो ऑन ए हॉलीडे आई प्रेफर राइटिंग टू या आई प्रेफर राइटिंग रादर देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। दैन अकेला यहाँ पे गलत होगा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं गाइज, IOR एंडिंग वर्ड्स, ये तो एक तो IOR एंडिंग वर्ड्स पता है सबको, सीनियर, जूनियर, ठीक है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये जिनमें IOR आता है एंड में, ठीक है, प्रायर, पोस्टीरियर, ठीक है, प्रायर मैं आपको लिखवाई देता हूँ सारे, प्रायर होता है पहले, पोस्टीरियर होता है बाद में, ठीक है, और इसी के साथ साथ प्रेफर, ठीक है। इन वर्ड्स को याद रखना गाइस, इन वर्ड्स के साथ हम दैन नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। तो ही इज जूनियर टू मी, शी इज सीनियर टू मी, ठीक है, सीनियर, जूनियर, superior, this product is superior to that product and that product is inferior to this product. Meet me prior to the function, meet me posterior to the function, and I prefer Indian food to English food, कि मतलब मैं इंडियन फूड को प्रेफर करता हूँ। तो प्रेफर के साथ एक तो चीज़ जो हमें याद रखनी थी वो क्या है, इनके साथ हम कभी दैन नहीं यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। और बाकी जो मैंने आपको बताया, ये जो IOR एंडिंग वर्ड्स हैं, इनको लिख लेना गाइस, ये एग्जाम में आते रहते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। इनके साथ भी दैन यूज़ नहीं होता, इनके साथ भी क्या यूज़ होता है, टू यूज़ होता है। तो शी इज़ सीनियर टू मी, आई एम सीनियर टू यू, या आई एम जूनियर टू हिम या जूनियर टू हर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। गाइज अब देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आई हैव बीन वर्किंग, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फ्रॉम नहीं यूज होता, या तो क्या यूज होता है, फॉर या फिर सिंस। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। तो सही प्रेपोजिशन यूज करना जरूरी होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई हाउस। सुनने में ठीक लग रहा था मेरे ख्याल से सेंटेंस, राइट, लेकिन गाइज याद रखना, इनवाइट, इनवाइटेड, इनविटेशन के साथ सिर्फ क्या यूज किया जाता है, टू। यू आर इनवाइटेड टू द पार्टी, ठीक है, वी आर कॉर्डियली इनवाइटिंग हिम टू द फंक्शन, ठीक है, तो इनवाइट, इनवाइटेड, या देयर इज एन इनविटेशन टू दिस इवेंट, ठीक है, तो वी हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन टू दिस इवेंट। तो इनवाइट, इनवाइटेड, इनविटेशन के साथ क्या यूज होता है, हमेशा टू यूज होता है। तो he and his wife were invited to the cultural function at my house. Next question guys, beside chocolate they also bought many balloons for the child. अब ये मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, beside और besides, अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई
चॉकलेट के साथ साथ उन्होंने बच्चे के लिए गुब्बारे भी खरीदे, बलून्स भी खरीदे। तो बिसाइड चॉकलेट या बिसाइड्स चॉकलेट, बिसाइड्स चॉकलेट दे ऑल्सो बॉट मेनी बलून्स फॉर द चाइल्ड। बिसाइड्स आएगा यहाँ पे, नॉट बिसाइड, क्योंकि बिसाइड क्या होता था, बगल में, और बिसाइड्स क्या होता है, इन एडिशन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, येस्टरडे विनय केम अक्रॉस विद वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। अब कम अक्रॉस का मतलब ही क्या होता है गाइज, किसी से अचानक मिलना। रास्ते में आप किसी से अचानक मिलते हो, या कहीं पे आप अचानक किसी से मुलाकात हो जाती है ना आपके, उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। लेकिन गलती क्या थी यहाँ पे, ठीक है, कम अक्रॉस के बाद आप दूसरा फिर एक प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। तो ही केम अक्रॉस वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई कॉलीग्स, या वन ऑफ माई एक्स कॉलीग्स, कि मैं एकदम अचानक से रास्ते में अपने पुराने कॉलीग से मिला। तो आई केम अक्रॉस या बिना केम अक्रॉस, विद नहीं, बिना केम अक्रॉस वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही रहेगा, विद यहाँ पे गलत है। ठीक है, जब आप एक कोई फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ना, जैसे कट टू, कम अक्रॉस, सी थ्रू, इनके बाद आप एक और प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन में आपको और फ्रेजल वर्ब में आपको ये चीज समझ आएगी। Next question guys, of what I know of him I hesitate to trust in him. Of what I know of him या of what I know about him, कि जितना भी मैं उसके बारे में जानता हूँ उस बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो of what I know about him I hesitate to trust in him। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, he left off Delhi this morning for some official work। he left off Delhi या he left for Delhi this morning, कि वो आज सुबह सुबह ही दिल्ली के लिए निकला है। तो गो टू होता है लेकिन लीव फॉर होता है गाइज। वी आर लीविंग फॉर वर्क, वी आर गोइंग टू वर्क, लेकिन वी आर लीविंग फॉर वर्क। वी आर गोइंग टू ऑफिस, वी आर गोइंग टू कॉलेज, बट वी आर लीविंग फॉर ऑफिस या वी आर लीविंग फॉर कॉलेज। तो लीव लेफ्ट फॉर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। प्रिवेंट के साथ याद रखना गाइज, प्रिवेंट के साथ कभी भी हम इन्फिनेटिव यूज नहीं करते। प्रिवेंट के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो होती है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जरंड। तो ही कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, टू गो देयर नहीं, ही कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर। ये आपने एडवांस वर्ब में सीखा होगा इन्फिनेटिव्स और जेरेंट्स का किसके साथ क्या यूज होता है। तो ही कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, माई बुक हैज बिन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल येस्टरडे। तो माई बुक हैज बिन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल येस्टरडे नहीं, सिंस येस्टरडे। हैज बीन मिसिंग कौन सा टेंस बन रहा है गाइज, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने क्या बताया था, कौन से वर्ड यूज होते हैं, या तो फॉर या फिर सिंस। स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट है तो सिंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। गाइस, यू डोंट कम ऑन सम, यू डोंट कम ऑन अ पोजीशन, यू कम टू अ पोजीशन। जैसे एग्जांपल देता हूँ गाइस, बीजेपी, द बीजेपी केम ऑन पावर या द बीजेपी केम टू पावर इन 2014, या मोदी केम टू पावर इन 2014। तो कम ऑन द थ्रोन नहीं, कम टू द थ्रोन होगा यहाँ पे। अकबर केम टू द थ्रोन, ठीक है, केम ऑन द थ्रोन सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। तो यू कम टू अ पोजीशन, यू नेवर कम ऑन अ पोजीशन। तो अकबर केम टू द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यू मस्ट प्रोवाइड टू योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द इविल डे। प्रोवाइड के साथ याद रखना गाइज, प्रोवाइड जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम यूज होता है। ये लिख लेना गाइज, ये नोट करने वाली बातें हैं। ये मैं आपको वंस इन्हें वो नहीं बता रहा कि भाई एक सिचुएशन में इसको यूज कर रहे हैं, आपको ये यूजेज सीखना पड़ेगा इनका, कि प्रोवाइड के साथ क्या यूज होता है। प्रोवाइड फॉर, ठीक है, अब ये अगर आपको पता है कि प्रोवाइड के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ फॉर, तो यू मस्ट प्रोवाइड फॉर योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द इविल डे। सिमिलरली जैसे प्रिवेंट के साथ क्या यूज होता है, फ्रॉम। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यू मस्ट प्रोवाइड फॉर योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द इविल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई विल सेंड यू दिस बुक लेटेस्ट टू 10th February। ठीक है, अब लेटेस्ट टू या लेटेस्ट बाय, देखो लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या बोलते हैं, जैसे आपने सुना है, पढ़ते ही हो आप, ऑर्डर करते हो ऑनलाइन चीज़ें, राइट। तो ये क्या आता है मैसेज में, योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड बाय 10th February या बाय 15th March। तो आपको जो लास्ट डेट दी जाती है ना, उससे पहले बोलने के लिए क्या क्या बोला जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, हमेशा बाय। जैसे आप मान लो घूमने जा रहे हो, मम्मी बोलती हैं कि बेटा कब तक वापस आ जाओगे, आप बोलते हो मम्मी आई विल बी बैक बाय 10 o'clock, आई विल बी बैक बाय 11 o'clock। तो बाय का मतलब क्या होता है, द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम।
ठीक है गाइस, तो ये तो थी कुछ अपनी बेसिक प्रेपोजिशंस की गलतियां जो हम कर जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं गाइस कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस के। कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन में भी बहुत गलतियां बनती रहती हैं एग्जाम्स में, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिंपल प्रेपोजिशन से। ठीक है, तो इनके भी आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। फ्रेजल वर्ब और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, तो ये दो टॉपिक तो आपको अच्छे से कवर करने ही हैं गाइस। चलो अब एक बार ये क्वेश्चन आप एक बार पहले सॉल्व करके देख लेना, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना इनका। ठीक है, तो गाइस कुछ क्वेश्चंस इसमें ही प्रैक्टिस करते हैं। दे ऑल मेट इन अ रूम विच वाज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। तो दे ऑल मेट इन अ रूम विच वाज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। गाइस सुनने में ठीक लग रहा था सेंटेंस गाइस, बट याद रखना डिस्कस के साथ कभी भी आप अबाउट यूज नहीं करते, ये गलत होता है। हम ये जो बोलते हैं ना वी वर डिस्कसिंग अबाउट यू, गलत होता है। पता है क्या बोलना चाहिए? वी वर डिस्कसिंग यू। हम ये बोल देते हैं वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम, गलत। आप प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे, आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, तो वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। तो डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट यूज नहीं किया जाता। तो दे ऑल मेट इन अ रूम विच वाज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन, नॉट डिस्कस अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। Next question guys, when the police accused him with theft, nobody believed them as he was well known for his honesty. अब गलती क्या है गाइस, accused के साथ क्या यूज किया जाता है? with, no। accused of होता है, charged with होता है। अगर charged होता ना, when the police charged him with theft, तब हम मना सकते थे, लेकिन अगर accused दिया हुआ है तो accused के साथ क्या यूज किया जाता है? of। तो गाइज ये कुछ लीगल आपकी टर्मिनोलॉजी होती है जो एग्जाम में यूज होती है, जैसे accused of, charged with, guilty of, summoned for, acquitted of, absolved from, then before the court और before the judge। तो ये कुछ लीगल टर्म्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो आप नोट कर लेना, नहीं आपके पास, नहीं आपको पता तो ठीक है। अक्यूज्ड ऑफ, चार्ज्ड विद, गिल्टी ऑफ, समन्ड फॉर, एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है बाइज्जत बरी कर देना, एक्विटेड ऑफ, और एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब भी होता है फ्री कर देना, मुक्त कर देना, तो एब्जॉल्व फ्रॉम। तो एक्विटेड ऑफ होता है, एब्जॉल्व फ्रॉम होता है, और फिर आपका मतलब बिफोर द जज या बिफोर द कोर्ट यूज किया जाता है। तो ये कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है। तो व्हेन द पुलिस अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, नोबडी बिलीव्ड देम एज ही वाज वेल नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मीटिंग scheduled to be held between 2 p.m. to 3 p.m. was postponed suddenly। सुनने में ठीक लग रहा है सेंटेंस, राइट? बट गाइज याद रखना, टू फ्रॉम के साथ यूज किया जाता है, फ्रॉम 2 p.m. टू 3 p.m. लेकिन अगर बिटवीन दिया होता है ना, तो बिटवीन के साथ याद रखना हम टू नहीं क्या यूज करते हैं? एंड। बिटवीन 2 and 3 p.m. कि मीटिंग 2 से 3 के बीच में नहीं, 2 और 3 के बीच में रखी गई थी, जो उसको पोस्टपोन करना पड़ा। सो द मीटिंग scheduled to be held between 2 p.m. and 3 p.m. तो बिटवीन के साथ याद रखना गाइज एंड होता है, और फ्रॉम के साथ टू होता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं हम सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही वाज conferred upon with an honorary D.Litt degree in recognition of his services to the cause of learning। he was conferred upon with, conferred upon with, दोनों यहाँ पे दो प्रेपोजिशन यूज नहीं होते ऐसे गाइस। तो he was conferred upon, he was conferred with an honorary D.Litt degree। conferred upon with नहीं, conferred with। ठीक है, किसी को नवाजा जाना, कि उसको D.Litt डिग्री के साथ नवाजा गया। तो he was conferred with an honorary D.Litt degree in recognition of his services to the cause of learning। नेक्स्ट गाइज, अगर सर आपने कभी कभी कन्फर्ट के साथ अपॉन भी देखा होगा, वो इसी सेंटेंस का पैसिव यूज होता है ना, तब यूज होता है गाइज। जैसे ही वाज कन्फर्ड विद अ डिग्री वाज कन्फर्ड अपॉन हिम। ठीक है, तो हम अगर पैसिव बनाएंगे ना, तो इसमें हम कन्फर्ड अपॉन बोल सकते हैं। तो बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, सर कन्फर्ड अपॉन भी तो देखा है हमने, तो वो कब होता है? जब आप पैसिव सेंटेंसेस बनाते हो। तो ही वाज कन्फर्ड विद अ डिग्री वाज कन्फर्ड अपॉन हिम। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मिथ दैट सम रेसेस आर नेचुरली सुपीरियर देन अदर्स हैज नाउ बीन फुल्ली डिमोलिश्ड। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया, यही वाला रूल। सुपीरियर बताया था अभी मैंने, सीनियर जूनियर, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है, प्रायर पोस्टीरियर, आपका प्रेफर, इनके साथ दैन नहीं क्या यूज होता है? टू यूज होता है। सो द मिथ दैट सम रेसेस आर नेचुरली सुपीरियर to others has now been fully demolished। Next question guys, this particular issue has been hanging in fire for a long time। guys अब ये सुनने में ठीक लग रहा है कि भाई हाँ ये इशू बहुत दिनों से लटका हुआ है, बट इसको हैंगिंग इन फायर नहीं, हैंगिंग फायर बोलते हैं। हैंगिंग फायर मतलब जो चलता ही जा रहा है। तो हैंगिंग फायर एक फ्रेज होता है
जिसका मतलब होता है कि कोई काम, कोई इशू का, कोई किसी चीज़ का लगातार मतलब परपेचुअली चलते रहना। तो दिस पर्टिकुलर इशू हैज़ बीन हैंगिंग फायर होता है, हैंगिंग इन फायर नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको पता चलते रहेंगे गाइस टाइम टू टाइम, अगर आपकी अच्छी रीडिंग हैबिट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आप पहले वीडियो वो पॉज कर लेना, आप खुद सॉल्व करना, फिर इसका सॉल्यूशंस देखना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड बाय फुट। ठीक है, अब गाइस वैसे मैंने आपको क्या बताया था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज होता है, ऑन। ठीक है, सॉरी क्या यूज होता है, बाय। वी ट्रेवल्ड बाय कार, वी ट्रेवल्ड बाय एयर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लेकिन फुट कोई आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता गाइस, कि पहले लोग पैदल चला करते थे, अब पैदल चलना इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमेशा फुट के लिए क्या यूज किया जाता है, ऑन फुट। तो इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड ऑन फुट, नॉट बाय फुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यू शुड नो दैट द अल्टीमेट डिसीजन इन द मैटर्स रेस्ट्स अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें गलती क्या थी गाइस, यू शुड नो दैट द अल्टीमेट डिसीजन नॉट इन द मैटर्स, ऑन द मैटर्स। ठीक है, जिस भी मैटर पे कोई डिसीजन लेता है तो डिसीजन इन द मैटर नहीं होता, डिसीजन ऑन द मैटर होता है। ठीक है, डिसीजन इन दिस केस हो सकता है, इन दिस इशू हो सकता है, लेकिन डिसीजन ऑन द मैटर बोला जाता है। ठीक है, तो द अल्टीमेट डिसीजन ऑन द मैटर्स रेस्ट्स अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Next question guys, in some tribal areas people worship snakes and are not scared from them. Guys, scared from नहीं होता, scared of होता है। I'm not scared of you, ठीक है, are you scared of dogs? तो scared of, I think ये तो easy था। In some tribal areas people worship snakes and are not scared of them. Next question guys, his new proposal seems hardly different than the one I've just rejected. His new proposal seems hardly different देन द वन आई हैव जस्ट रिजेक्टेड। गाइस डिफरेंट के साथ दैन यूज नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम यूज होता है। दैन मैंने आपको बताया था सिर्फ कंपैरिजन में यूज होता है, जब अकेला यूज होता है। तो दिस वाज इनकरेक्ट, हिज न्यू प्रपोजल सीम्स हार्डली डिफरेंट फ्रॉम द वन या फ्रॉम दैट द वन आई हैव जस्ट रिजेक्टेड। Next question guys, to lead a well balanced life you shall have to cultivate other interests beside your प्रोफेशनल वंस। अब ये फिर वही बिसाइड वाली गलती तीसरी बार आ गई, बिसाइड या बिसाइड्स। In addition to your professional ones, you also have to cultivate other interests to lead a well balanced life. तो यहाँ पे besides आएगा। Next question guys, after nagging constantly for months and administering weekly tests, the teacher was at last pleased for the boys progress. Pleased for नहीं, pleased by the boys progress. So after nagging constantly for months and administering weekly tests, the teacher was pleased बाय या विद, आई थिंक प्लीज्ड विद आना चाहिए, प्लीज्ड बाय नहीं। अब प्लीज्ड बाय समवन होता है, लेकिन प्लीज्ड विद समथिंग होता है। तो ही वाज प्लीज्ड विद द बॉयज परफॉर्म, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो प्लीज्ड फॉर तो देखो नहीं हो सकता, तो प्लीज्ड बाय समवन एंड प्लीज्ड विद समथिंग होता है। ठीक है, आई एम डिस्प्लीज्ड विद यू, आई एम डिस्प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस, तो विद यूज होता है। आई थिंक तो विद इज द राइट preposition guys, got it। तो he was at last pleased with the boys performance. Next question guys, I'd appreciate spending half an hour with you to discuss about how these and other experience might be mutually beneficial. मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था discuss के साथ about use नहीं होता। हाँ जी guys, सेम वही गलती थी। I'd appreciate spending half an hour with you to discuss how these and other experience might be mutually beneficial. Discuss के साथ कभी about use नहीं use किया जाता। Next question guys, the teacher was happy when he entered the class which comprised of a wonder where it comes from। कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे गाइस, ये आई थिंक यहाँ पे गलत पार्ट है, इसमें जिसको चेंज कर लेना, विच कंप्राइज्ड ऑफ 30 स्टूडेंट्स या ऐसे कुछ कर लो, यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है शायद। तो विच कंप्राइज्ड ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मान लो। तो ये सारा सेंटेंस, द टीचर वाज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 30 स्टूडेंट्स। अब इसमें जो गलती थी ना गाइस, वो गलती यही थी गाइस, कंप्राइज के साथ कभी ऑफ यूज नहीं किया जाता, याद रखना। कंसिस्ट ऑफ होता है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ होता है, इन दोनों के साथ हम ऑफ यूज करते हैं। और इसी हैबिट में हम क्या करने लग जाते हैं, हम कंप्राइज के साथ भी ऑफ यूज करने लग जाते हैं। बट आज के बाद याद रखना, ठीक है, कंप्राइज का मतलब भी होता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ। तो दोबारा हम कंप्राइज के बाद ऑफ यूज नहीं कर सकते। तो कंसिस्ट ऑफ होता है, कंपोज्ड ऑफ होता है, लेकिन कंप्राइज के बाद कभी ऑफ यूज नहीं होता। तो द टीचर वाज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड 30 स्टूडेंट्स होगा, ऑफ नहीं होता यहाँ पे कभी भी। ठीक है, next question guys, yet firms and other concerns are spending large sums of money all the time and somehow we take this for granted and never stop to wonder where it comes from। तो क्या बोल रहा है भाई, हालांकि फर्म्स और ऐसे अदर कंसर्न्स आर स्पेंडिंग
लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑल द टाइम, कि हर टाइम पे मतलब हर वक्त वो बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसे स्पेंड करते हैं। एंड सम हाउ वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, और हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, भाई टीवी पे ऐड आ रही है तो आ रही है, अब ये नहीं सोचते हम कि वो कितने लाखों करोड़ों की ऐड है वो। एंड वी नेवर स्टॉप टू वंडर वेयर इट कम्स फ्रॉम। ठीक है गाइज, तो वी नेवर स्टॉप टू वंडर नहीं, वी नेवर स्टॉप वंडरिंग। गाइज ये आपका एडवांस वर्ब का क्वेश्चन था। वी नेवर स्टॉप वंडरिंग वेयर इट comes from, कि भाई yet firms and other concerns are spending large sums of money all the time and somehow we take this for granted and never stop to wonder की जगह never stop wondering where it comes from। तो stop के साथ हम अपने gerund यूज करते हैं। ठीक है, अपने इन्फिनेटिव यूज नहीं, इन्फिनेटिव जब यूज होता है जैसे ही स्टॉप टू बाय समथिंग, कि वो कुछ खरीदने के लिए रुका, लेकिन जब हमने बोलना ना कि हम कोई काम करना रोक दिया है या नहीं रोक पा रहे हैं, तो ही हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग या ही ही कैन नॉट स्टॉप स्मोकिंग। तो स्टॉप के साथ जब अपने कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात करनी होती है तो हम इसके साथ जेरेंड यूज करते हैं। जेरेंड इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप टू वंडर नहीं, स्टॉप वंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, thank for your invitation for lunch, which अच्छा thanks है guys, sorry, thanks for your invitation for lunch which I'm very pleased to accept। तो thank your invitation for lunch मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, thanks for invitation to lunch which I'm pleased to accept। तो thanks for your invitation to lunch, invite, invited, invitation के साथ क्या यूज होता है हमेशा, to। तो thanks for your invitation to lunch which I'm very pleased to accept। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सैट बिसाइड्स मी। ये चौथी बार यही गलती आ रही है, बिसाइड्स मी या बिसाइड मी। अब तो ये याद हो जाएगा आपको, आई एम श्योर कि आप गलती नहीं करोगे आप कभी बिसाइड और बिसाइड्स में, कि बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सैट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई साइंड ऑन द रिसीट इन द मॉर्निंग बट द पे हैज नॉट बीन डिसबर्स्ड टू मी। गाइस अब ये सुनने में ठीक लग रहा होगा शायद, पहले एक बार सॉल्व कर लेना सारे, फिर अब मैं आपको सॉल्यूशन देखना। तो ठीक लग रहा होगा सुनने में कि हाँ सर, आई साइंड ऑन द रिसीट इन द मॉर्निंग बट द पे हैज़ नॉट बीन डिसबर्स्ड टू मी, कि मैंने सुबह ही साइन कर दिए थे रिसीट पे, लेकिन मुझे अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। अब गलती क्या है गाइस, साइन के साथ आप कभी ऑन यूज नहीं करते। आई साइंड द रिसीट होता है, देखो गाइस साइन समथिंग, लेकिन सिग्नेचर ऑन होता है, पुट योर सिग्नेचर ऑन द रिसीट या पुट योर सिग्नेचर ऑन द पेपर्स। तो सिग्नेचर ऑन द पेपर्स होता है, लेकिन साइन जो होता है ना वो वर्ब होती है, और उसके बाद हम प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं। तो आई साइंड ऑन द रिसीट नहीं, आई साइंड द रिसीट इन द मॉर्निंग बट द पे हैज नॉट बीन डिसबर्स्ड टू मी। तो साइन के साथ हम ऑन यूज नहीं करते, कभी भी याद रखना। सिग्नेचर ऑन होता है, साइन ऑन नहीं होता। हम क्या बोलते हैं, प्लीज साइन द पेपर्स या प्लीज साइन ऑन द पेपर्स। सर हम तो साइन ऑन द पेपर्स भी बोल देते हैं, है ना, लेकिन गलत होता है वो, प्लीज साइन द पेपर्स, प्लीज साइन द डॉक्यूमेंट्स, ये बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल देन अ पेन। ये हमने किया था, प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफरेबल के साथ देन नहीं, क्या यूज होता है, टू यूज होता है। तो इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यू मस्ट मेक अप द टाइम यू वेस्टेड दिस आफ्टरनून बाय वर्किंग लेट ओवर द नाइट। गाइस अब इसमें गलती क्या थी कि भाई वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें जो तुमने दिन में टाइम खराब किया वो रात को लेट काम करके आपको पूरा करना पड़ेगा। तो यू मस्ट मेक अप द टाइम यू वेस्टेड दिस आफ्टरनून बाय वर्किंग लेट ओवर द नाइट या बाय वर्किंग लेट ओवर नाइट। ठीक है, ओवर द नाइट नहीं, बाय वर्किंग लेट ओवर नाइट। ठीक है, ओवर नाइट मतलब पूरी रात के दौरान आपको काम करना पड़ेगा। तो यू मस्ट मेक अप द टाइम यू वेस्टेड दिस आफ्टरनून, मेकअप मतलब कवर करना उसको, मतलब उसके लिए उसके बिहाफ पे और काम करना। तो यू मस्ट मेक अप द टाइम यू वेस्टेड दिस आफ्टरनून बाय वर्किंग लेट ओवर द नाइट नहीं, बाय वर्किंग लेट ओवर नाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट्स टू सी, लिसन एंड कम्युनिकेट हैज मेड देम इंटेग्रल विद मॉडर्न वॉरफेयर एंड न्यूक्लियर वॉर स्ट्रेटजीज इन पर्टिकुलर। यस गाइस, अब इसमें गलती क्या थी गाइस, इंटेग्रल विद नहीं होता, इंटेग्रल टू होता है हमेशा। तो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट्स टू सी, लिसन एंड कम्युनिकेट हैज मेड देम इंटेग्रल विद नहीं, इंटेग्रल टू मॉडर्न वॉरफेयर एंड न्यूक्लियर वॉर स्ट्रेटजीज इन पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ही लुक्ड लाइक अ लायन बॉल्ड फ्रॉम इट्स प्रे। अब बॉल का मतलब क्या होता है कि भाई वो ऐसे लग रहा था जैसे शेर अपने शिकार पे एकदम से बिल्कुल नजर लगा के नहीं बैठ जाता चुप होके बिल्कुल से, तो वो ऐसे लग रहा था कि वो अपने शिकार पे, ठीक है, बिल्कुल नजर टिका के, नजर गड़ा के बैठा हुआ है। तो बॉल्किंग मीन्स नजर गड़ाना, मतलब किसी के वेट में, इंतजार में बैठना। तो ही लुक्ड लाइक अ लायन, लेकिन उसमें गलती क्या थी गाइस, बॉल्क्ड फ्रॉम नहीं होता, बॉल्क एट यूज किया जाता है। तो ही लुक्ड लाइक अ लायन बॉल्क्ड एट इट्स प्रे। ठीक है, बॉल्क एट नहीं होता, बॉल्क एट यूज किया जाता है। तो ही लुक्ड लाइक अ लायन बॉल्क्ड फ्रॉम नहीं होता, बॉल्क एट यूज किया जाता है। तो ही लुक्ड लाइक अ लायन बॉल्क्ड एट इट्स प्रे।
ठीक है, अब ये फिक्स होते हैं गाइस जो आपको याद रखनी पड़ते हैं, कुछ कुछ ऐसे ना, जैसे एक्विटेड ऑफ, एब्जॉल्व फ्रॉम, तो बॉल्क्ड एट होता है, तो ये आपको जो आपकी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें मिल जाएंगे आपको ये। आपको कोर्स में मैंने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं गाइस। फ्रेजल वर्ब की लिस्ट है, आपकी कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन की कंप्लीट लिस्ट है विद इन द वीडियोस एंड द चैप्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द कोर्स। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो ज़रूर करना, क्योंकि एग्जाम के लिए वो बहुत ज़रूरी है गाइस। Next question, guys. Often in political campaigns, a point is reached at which the candidates take out their gloves and start slagging with their bare fists. ये सही में होता है। देखो गाइस, पॉलिटिकल कैंपेन शुरू शुरू में तो सब अच्छे से करते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम वो इलेक्शन नज़दीक आ जाता है ना, सब अपनी वाली पे कच्चे में उतर आते हैं। कोई किसी के पोस्टर फाड़ रहा होता है, कोई किसी को गालियां दे रहा होता है, कोई कुछ लड़ाई कर रहा होता है। तो वही कह रहा है वो कि ऑफन इन पॉलिटिकल कैंपेन्स अ पॉइंट इज रीच्ड एट विच द कैंडिडेट्स टेक आउट देयर ग्लव्स एंड स्टार्ट स्लैगिंग विद बेयर फिस्ट्स, के भाई वो जैसे बोलते हैं ना, मतलब वो मतलब अपने वो अच्छे जो उनका डिमीनर होता है ना वो उतार देते हैं और वो अपने असलियत पे आ जाते हैं। लेकिन इसमें गलती क्या थी गाइस, यू डू नॉट टेक आउट योर ग्लव्स, यू टेक ऑफ योर ग्लव्स। गाइस, जो चीज़ आप पुट ऑन करते हो ना, तो पुट ऑन का ऑपोजिट पुट ऑफ होता है। तो पुट ऑन अ शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट, पुट ऑन अ जैकेट, टेक ऑफ योर जैकेट। तो पुट ऑन द ग्लव्स, टेक ऑफ द ग्लव्स होता है, टेक आउट देयर ग्लव्स नहीं होता। ठीक है, अगर ये होता ना टेक हैंड्स आउट ऑफ देयर ग्लव्स, के हाथ ग्लव्स से बाहर निकाल लेते हैं, तब आप बोल सकते थे कि लेकिन अब ये एक फ्रेज है, टू टेक ऑफ द ग्लव्स। टेक ऑफ द ग्लव्स मीन्स असलियत पे आ जाना अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे गलती थी, टेक आउट नहीं, टेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, और एक मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो चलो गाइज, लास्ट क्वेश्चन आपने होमवर्क की तरह करना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आपने उसका आंसर बताना है, लाइक प्रीवियस सेशंस। बट एक बार 24 क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ द एयरफोर्स was the complete demolition of all means of transportation by the bombing of rail lines and terminals. One of the major aims of the Air Force was the complete demolition of all means of transportation by अच्छा ये आर्टिकल से by the bombing नहीं, by bombing of rail lines, by bombing of the rail lines। अब यहाँ पे ना एंड टर्मिनल्स, ये द एक्चुअली गलत जगह पे यूज हो रहा है, तो ये आर्टिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बन गया है कि वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ द एयरफोर्स वाज द कंप्लीट डिमोलिशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय द बॉम्बिंग नहीं, बाय बॉम्बिंग ऑफ द रेल लाइन्स एंड टर्मिनल्स। वैसे प्रेपोजिशन का क्वेश्चन तो नहीं था, बट हाँ गलती हमें शायद मिल जानी चाहिए यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन गाइज मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। द सेलिब्रेटेड सिंगर वॉज सराउंडेड बाय द यूजुअल क्राउड ऑफ लैकीज एंड हैंगर्स इन। यस गाइज, तो अगर आप मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या गलती थी, तो लेट अस सी कि आप सही तरह से प्रेपोजिशन को पिक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो चलो गाइज, ये थे आज के आपकी सेशन फॉर योर प्रेपोजिशंस एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस। आई होप गाइज दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू आउट। अब गाइज, अगर आपको हमारे कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो लेट मी शो यू, आई विल ट्राई अगेन। मैं शुरू में भी ट्राई कर रहा था बट हुआ नहीं। हाँ जी गाइज, तो लेट मी शो यू कि जब आप अपने क्या बोलते हैं अपने ब्राउज़र पे edutab.co.in सर्च करते हो, लेट मी ट्राई इट अगेन। पता नहीं कुछ इंटरनेट में इशू आ रहा है शायद। आई थिंक मेरे इंटरनेट में ही कुछ इशू आ रहा है राइट। तो देखते हैं अगर खुलता है। तो मैं क्या बोल रहा था, मतलब लेट मी जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू। ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू है गाइस, तो हाँ ये आ गया। तो गाइस, दिस इज आवर लैंडिंग पेज, दिस इज आवर वेबसाइट। ठीक है, आप जब ऊपर जाओगे गाइस, टॉप पे ही आपको एग्जाम्स, कोर्सेज, फ्री मटेरियल ये सब मिलेगा। तो कोर्सेज में जब आप आरबीआई ग्रेड बी या नबार्ड ग्रेड ए पे जाओगे, तो अब दोनों में से कोई भी जो आपका एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आरबीआई का दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो या आप नबार्ड की तैयारी कर रहे हो, अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गाइस, ठीक है, तो आपको बेसिकली समझना है कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो इस टाइम पे गाइस, द बेस्ट मतलब प्रेपरेशन एट दिस मोमेंट इज क्रैश कोर्स। ठीक है, अगर आप क्रैश कोर्स सही से मतलब अटेंड करके जाते हो, जो अगले उसमें लेक्चर्स हैं हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक के ऊपर आपको हमने वहाँ पे आपके लेक्चर्स दिए हैं। तो अगर आप क्रैश कोर्स या आप क्विक रिवीजन बैच अगर आप अच्छे से कवर कर जाते हो, तो गाइज आई कैन गारंटी यू कि इन दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम
आप इस मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो एंड यू कैन यू कैन स्कोर वेरी हाई। तो लेट मी शो यू द कोर्सेज एक बार ना। तो जैसे ये आरबीआई पे आप क्लिक करोगे तो आरबीआई में अभी जो आपके कोर्सेज हैं ये है आपका क्विक रिवीजन बैच है, जिसमें आपको सारी लाइव क्लासेस, करंट अफेयर्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वीकली मेंटर टॉक सब मिलता है एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 63% डिस्काउंट ऑन दिस अमाउंट। सिमिलरली वी हैव अ लाइव क्रैश कोर्स जिसमें आपकी सिर्फ लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, विद एवरीथिंग अवेलेबल टू यू एंड देन देयर इज अ सेपरेट टेस्ट सीरीज एज वेल। अगर यहीं पे अगर आप नबार्ड के कोर्सेज देखो, ठीक है, तो नबार्ड में भी आपको अभी इस टाइम पे वी आर प्रोवाइडिंग यू नबार्ड ग्रेड ए टेस्ट सीरीज जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो आप अवेल कर सकते हो, एक क्विक रिवीजन बैच जिसमें आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस हैं, समरी शीट्स हैं, और लाइव टेस्ट सीरीज जो फेज़ 1 और फेज़ 2 की भी है। फेज़ 1 की अलग है और फेज़ 2 की, फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 की बिल्कुल अलग है। तो आप उनमें आप अपना दोनों में आप चूज़ कर सकते हो आपको इस टाइम पे क्या सही रहेगा। एक लाइव क्रैश कोर्स है आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 का, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिल्वर कोर्स और गोल्ड कोर्स भी अगर आपको आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। सो दीज आर वेरी यूजफुल कोर्सेज एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर योर एग्जाम। तो आपको अभी भी अगर प्रिपरेशन शुरू करना है और इसको होलिस्टिक बनाना है तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज। द लिंक फॉर आवर कोर्सेज हैव आल्सो बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो कम ज्वाइन अस एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और गाइज आपका जो भी फीडबैक है, आपका जो भी इनपुट्स हैं, you can always share them with us on this email ID, which is hello@edutab.co.in. That's our official email ID, guys. You can share your inputs, your feedbacks with us. और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, guys, you can always call us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So guys, we'll continue with such sessions, more such sessions for you in the upcoming days. We'll bring more such questions for you, will more such practice sessions for you, जिससे आपका confidence build up होता रहे। तो guys, इस वीडियो के comment section में ज़रूर बताना आपको ये sessions कैसे लगे, were they helpful or not, were they useful for you or at this point of juncture or at this point of time for your exam, आपको useful लगे, beneficial लगे या नहीं, और आपका अगर कोई input है तो please do share them as well, right? So I'll take your leave for today, guys. I wish you all the success in your endeavors ahead, and I'm sure that you will come out with flying colors and you will come out as a winner. So guys, just keep on dedicatedly working hard. Okay, keep on pushing yourself, and in this last leg of the exam, and I'm sure that you will come out and you will do your best and you will crack this phase 1, and you will simultaneously prepare for phase 2 and for your interview part later on the stage. So guys, having said that, all my well wishes are with you. Stay safe, stay healthy, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure that you will do wonders in life. So thank you so much once again, guys. I'll see you again in the next session. Till then, happy learning to all of you.